Good afternoon, friends. I'm CS Satish Goyal. I welcome you all on behalf of Shastrinagar CP Study Circle. To start with, today we have CA Pankaj Kumar Mishra ji with us. I request him to come to the dais, please. Thank you, sir. Pankaj ji is Chartered Accountant, LLB, a peer reviewer, FA, FAD, Forensic Auditor, MCOM and BCom CS. He has also done advanced certification by ICI in CCIA, CCGST, CCCAB and CCAI. CC means certificate course. So he is a co-opted member as special invitee of Direct Tax Committee of ICI for the year 26-27, Direct Tax Committee of NIRC of ICI for 26-27, Career Counseling Committee of ICI for 25-26, Editorial Board of ICI for the year 24-25, Direct Tax Committee of ICI for 23-24, Research Committee NIRC of ICI 24-25. He is the visiting faculty of our institute and the Institute of Cost and Management Accountants of India for direct taxes. Is specially acknowledged by the Direct Tax Committee of ICI for his contribution for revising the guidance note on tax audit under section 44AB of the Income Tax Act 1961. The revised edition was 2023. Professionally, CA Pankaj Mishra has been practicing chartered accountant in the areas of startups and MSME. Advisory services include both direct and indirect taxation, planning and management. His practice area also includes advisory service on the matters of tax, compliances management, international taxation management, business structuring, foreign exchange laws including foreign trade policy. He also has rich experience in handling complex issues of taxation matters and income tax proceedings with the income tax authorities and conducting due diligence exercise to facilitate business acquisition, strategic business management and various joint ventures among national and international bodies. He has carried out several assignments for due diligence and technical visibility evaluation of companies. Friends, today he'll be taking us various changes under new income tax returns for the current assessment year 26-27. So over to Pankaj ji. जब भी चाहिए ना ये प्रेस करोगे यहाँ लाइट जल जाएगी तब बोलो. Thank you, sir, and good evening to all of you. सर बाहर चाय तो पी ली थी ना आप लोगों ने अच्छे से. मैंने कहा गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू तो आवाज कुछ वो कम सी आई. तो वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. पहली बार बंसल साहब ने अपने स्टडी सर्कल में मुझे इनवाइट किया है टू डेलिबरेट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, recent changes in ITR forms applicable for the assessment year 2026-27, and to discuss with some basic practical issues that we keep on facing on day-to-day basis with respect to the presumptive taxation. What all are the presumptive taxation? उस पर मैं आपसे कुछ litigation डिस्कस करूंगा, कुछ और इश्यूज डिस्कस करूंगा जो हमारे को डे टू डे एक्टिविटी में पता लगता है कि यार ये पर्टिकुलर कुछ एक्टिविटीज है जो मैं अंडरटेक करता हूं तो मुझे क्या परेशानी और डिफिकल्टी होती है, राइट. हाउ मैनेज डिपार्टमेंट का क्या पर्सपेक्टिव है और हमारा क्या पर्सपेक्टिव है, उस पर आई विल डिस्कस ऑन दोज फ्यू इश्यूज ऑन दैट. सर मुझे यहाँ पे खड़ा होकर ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा बड़ा हो गया, मतलब तो कैन आई कम राइट. हाँ वो थोड़ा सा आए सर. तो आई फील टू बी द पार्ट ऑफ ऑल माई सीनियर मेंबर्स, माई रिस्पेक्टेड मेंबर्स. नाउ सर
आईटीआर फाइल करना तो शुरू कर ही दिया होगा हमने। कौन कौन से फॉर्म्स आ गए हैं? सारे फॉर्म आ गए? नहीं आए? मतलब टेंटेटिवली इतना याद आ रहा है कि सर फॉर्म नंबर 1, 2, 3 एंड 4 वो चारों आ गए हैं, राइट? तो सर फॉर्म्स नोटिफाई कब हुए थे? सारे फॉर्म्स, मतलब जितने आईटीआर फॉर्म हैं, ये सारे आईटीआर फॉर्म नोटिफाई कब हुए थे? मार्च फर्स्ट, मतलब मार्च की शुरुआत में नोटिफाई किया था या मार्च के एंड में नोटिफाई किया था? क्योंकि दिस इज अ वेरी क्रूशियल क्वेश्चन। और ये टूल्स हमारे को कब यूटिलाइज करते हैं हम? जब हम एट द एंड ऑफ द ड्यू डेट तो जब हम होते हैं तो वी एवरी टाइम फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टी कि सर डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर डेट बढ़वानी होती है तो कहते ये नहीं हुआ, आपने टाइम पे ये नहीं करा, वो नहीं करा। तो अकॉर्डिंगली लुकिंग इनटू ऑल दोज पर्सपेक्टिव मैंने पूरे डेट्स वाइज एक एनालिसिस करा हुआ है। किस डेट को फॉर्म नोटिफाई हुआ, किस डेट को यूटिलिटी रिलीज हुई, फर्दर किस डेट को यूटिलिटी दोबारा से अपडेट हो गया, राइट? सर आप इस स्क्रीन को पूरा चला सकते हैं क्या? इसको ना नहीं, पीपीटी है। अब चलेगा। तो सर सबसे पहले द फॉर्म, इंटायर फॉर्म ITR 1 से लेके ITR 7 तक, यानी कि लास्ट ITR U तक सारे फॉर्म नोटिफाई हुए। किस डेट को नोटिफाई हुए सर? 30 मार्च 2026 को ये सारे फॉर्म नोटिफाई हो गए। ITR 1 इज सहज फॉर्म, ITR 4 इज सुगम फॉर्म। हम सबको पता है सहज कितना सहज है वो अभी हम देख लेते हैं, और सुगम भी कितना सुगम है वो भी वी विल सी लेटर ऑन। अकॉर्डिंगली ITR 2, 3, 5, 6, 7 now serial number 7, notification number 51 2026 notify the form ITR 5 एंड एक फॉर्म और नोटिफाई हुआ। कौन सा फॉर्म नोटिफाई हुआ? इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट। ये कौन सा एक्नॉलेजमेंट है सर? जब हम रिटर्न सबमिट करते हैं और सबमिट होने के बाद में जब वहां से वापस एक्नॉलेजमेंट मुझे मिलता है, वो एक्नॉलेजमेंट कौन सा होता है? वो कौन सा होता है सर? ITR-V। वो वाला ITR-V होता है। और वो वाला कौन सा होता है सर? जो वैलिडेट नहीं होता, हम साइन करके भेजते हैं CBC, वो कौन सा फॉर्म होता है सर? वो भी ITR-V होता है। सर एक बार दोबारा एक फॉर्म पे आप चेक कर लेना, जो हम भेजते हैं साइन करके मैनुअली, दैट इज ITR-V। बगल में लिखा रहता है इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट, राइट? और जो OTP से वैलिडेट हो जाता है, DSC से वेरीफाई हो जाता है, दैट इज कॉल्ड, वहां ITR-V लिखा हुआ शायद नहीं आता, बगल में लिखा आता है इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट। दिस इज वो फॉर्म भी नोटिफाई करना पड़ता है उनको, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट ऑल, क्योंकि रिटर्न फाइल करते समय नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वर पंच्ड इन द सिस्टम, और आपको मेन पेज पे क्या दिखाना है, दैट इज ऑल्सो पार्ट विच इज रिक्वायर्ड टू बी नोटिफाइड। अकॉर्डिंगली ITR-U भी फिर इन्होंने नोटिफाई कर दिया। लुकिंग इनटू द अनदर एस्पेक्ट, सर यूटिलिटी कब आया? सबसे पहले फॉर्म तो नोटिफाई करा आपने 30 मार्च 2026 को फॉर्म नोटिफाई हुए। उसके बाद में मेरा जो यूटिलिटी है, ये यूटिलिटी कब रिलीज हुआ? ITR 1 रिलीज हुआ सर डेट ऑफ फर्स्ट रिलीज ऑफ फर्स्ट वर्जन ऑफ यूटिलिटी। ITR 1 और ITR 4 एक साथ नोटिफाई हुआ। दिस इज 15th of May 2026. Similarly, latest amendment that were made in the utility is also on 30th of June 2026. यहां पे भी 30th of June 2026 में करा। ITR 2 26 मई को रिलीज हुआ और ITR 3 18th जून को आया। फिर 30th जून 2026 में दोबारा से ये फॉर्म रिलीज हुआ। अकॉर्डिंगली मैंने देखा लास्ट इनकम टैक्स पोर्टल पे जब मैं चेक कर रहा था, आई फाउंड कि वहां पे कुछ और अपडेशन आया है 1 जुलाई 2026 को, और बाकी जो फर्स्ट रिलीज जो ये बता रहे हैं यहां पे, ये 20 में 2026 की बात यहां पे कर रहे हैं कि इन बिटवीन देयर वाज सम अमेंडमेंट वेर मेड अकॉर्डिंगली। नाउ सर फर्दर जब ये नोटिफिकेशन आता है
इस नोटिफिकेशन में 2-3 चीजें लिखी होती हैं, कभी भी आप देखोगे तो। अभी जो मैं बात कर रहा हूं सर, इस बार जो क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2025 आ गया है, तो क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंस एक्ट 2025 के हिसाब से फाइल होगा या इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 2026-27 के हिसाब से फाइल होगा? किसके हिसाब से फाइल होगा? ऑफ कोर्स सर, हम असेसमेंट ईयर 2026-27 की बात कर रहे हैं, और उस असेसमेंट ईयर पे कौन सा इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होगा? इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल होगा। तभी मैं जो भी बातें आपसे करने जाऊंगा वो किस एक्ट के लिए बात करूंगा? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के लिए बात करूंगा। सबसे पहला क्लैरिफिकेशन ये, राइट? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं व्हाइल हैविंग द सेमिनार, राइट सर? अच्छा सर, नाउ कमिंग टू द अनदर पार्ट, व्हाट कंटेंट इज देयर ऑन द नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन में दो चीजें होती हैं। जब सबसे पहली बात होती है, नोटिफिकेशन बोलता है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर, in exercise of the power conferred under section 139 read with section 295 of the income tax act 1961। अब सर 139 की बात क्यों आती है किसी भी नोटिफिकेशन में? 139 में ऐसा कौन सा टूल्स है, क्या यूज करते हैं? 139 corresponding section 263 of income tax act 2025, राइट? क्योंकि कुछ अमेंडमेंट्स डन बाय फाइनेंस एक्ट 2026, जो 263 में अमेंडमेंट आया था पहले, फिर उसके बाद साथ में पैरेलल चेंज उन्होंने करा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी इन सेक्शन 139, राइट सर? तो जो इन्होंने बात कही है नोटिफिकेशन में, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर सेक्शन 139 रेड विद सेक्शन 295 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये क्या बात है सर? 139 में हम क्या करते हैं सर? 139 इज अ सेक्शन, यस, 139 में लिखा होता है कि भाई एवरी पर्सन, मैं 139 की बात बता रहा हूं आपको, एवरी पर्सन बीइंग अ कंपनी और अ फॉर्म और अदर देन अ कंपनी और अ फॉर्म, इस बीच में 2-3 लाइन मैं गैप कर रहा हूं। एवरी पर्सन बीइंग अ कंपनी और अ फॉर्म और अदर देन अ कंपनी और अ फॉर्म शैल रिक्वायर टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न ऑन और बिफोर द ड्यू डेट एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, verified in the prescribed manner and setting forth such other particular as may be prescribed। ये कहां से प्रिस्क्राइब होगा? और जो तीसरा, जो फर्स्ट लाइन था कि shall every person required to furnish their income tax return on or before the due date as per the prescribed form, कौन सा फॉर्म सर? which form? वो उस फॉर्म की बात कर रहे हैं जिस फॉर्म को हम चूज करते हैं while filing the income tax return। और वो फॉर्म कहां से प्रिस्क्राइब होता है? That form is generally prescribed by the principal rule of the Income Tax Act 1962। वो कौन सा रूल है? वो रूल 12 है, जो सारे फॉर्म को प्रिस्क्राइब करता है। और हर रूल 12(1), रूल 12(1)(c), रूल 12(1)(b) वो बोलते हैं आपको किस सर्कमस्टांसेस में, किस केस में आपको ITR-1, ITR-2, ITR-3, ITR-4, ITR-5, ITR-6, ITR-7 पिक करना। कहीं से तो निकल के आएगा ना भाई। सेक्शन 139 क्या बोला? सेक्शन 139 बोलता है कि भाई यू नीड टू फर्निश योर इनकम टैक्स रिटर्न ऑन और बिफोर द प्रिस्क्राइब्ड डेट एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। भाई आप उस मैनर से प्रिस्क्राइब करेंगे, वेरीफाई करेंगे जो हम आपको बताएंगे। और नंबर 3 बोलता है सेटिंग फोर्थ सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी रिक्वायर्ड। एक सवाल एक छोटा सा एक यहां पर ले लेता हूं सर। जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फर्निश करते हैं तो वहां पे के साथ में कंपोजिशन ऑफ इनकम भी जाता है क्या? क्या बैंक स्टेटमेंट भी फर्निश करना पड़ता है? पेमेंट ऑफ टैक्स पेमेंट भी करना पड़ता है? वो सारे डिटेल देने पड़ते हैं क्या? एज ऑफ नाउ नहीं देने पड़ते। लेकिन पहले जो एक्ट था, जब हम मैनुअली सबमिट करते थे तो वहां पे सर बंच आपने फर्निश किया होगा, पूरी यूज बन जाता था वहां पे। इट्स अ रूल 12(1) से रूल 12(2) बोलता है, ये 3 बोलता है सॉरी, कि आपको द इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं दैट दे शैल नॉट रिक्वायर्ड टू अकम्पनीड दीज फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आगे बताऊंगा आपको उसमें। अब सर एक सेक्शन मैंने डिस्कस कर लिया है कि जो मेरा नोटिफिकेशन आया है दैट नोटिफिकेशन इज
पहला जो बोलता है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर सेक्शन 139 रेड विथ सेक्शन 295। अभी 295 क्या है? 295 एक सेक्शन है जो पावर देता है किसको? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को। बोलता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट may make such rules in order to accomplish the objective and purpose of Income Tax Act. In order to administrate that, if Central Board of Direct Taxes feel it's necessary to make certain rules, so he can make that rules with consultation of the central government by virtue of section 295. ये बात वो बोलता है particular section. अब coming to the another point, बोले कि सर अब ये रूल्स आया है। रूल कब से आया है सर? दीज रूल्स में बी कॉल्ड द इनकम टैक्स सेकेंड अमेंडमेंट रूल 2026। ये बात होगी क्लियर यहां तक? दे शेल कम इनटू द फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 31st डे ऑफ मार्च 2026 सर। 30 तारीख को फॉर्म नोटिफाई करा और 31 तारीख से इसको एक्टिव कर दिया एज पर द रूल, राइट? एंड शेल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिटर्न फाइल्ड फॉर द असेसमेंट ईयर 2026-27। Now the income tax rule 1962 herein after referred to as the principal rule in rule 12. अब rule 12 में ये सारे फॉर्म्स हैं जो ऊपर मैंने आपको दिखाए सब सेक्शन 3 में entirely. This is the complete form. Section 139 I already read with, right? Now इसमें सर कुछ प्रोविजो भी है इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करना होता है सर? स्कीम ऑफ टैक्सेशन क्या बोलता है हमारा? अगर मैं स्कीम ऑफ टैक्सेशन पे जाऊं तो मैंने जनरली स्कीम ऑफ टैक्सेशन क्या है? मेरा स्कीम ऑफ टैक्सेशन है, अगर हम याद करें इनिशियली शुरू के 2-4 पन्नों में ये बात लिखी हुई है, वो बोलता है एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax shall pay an income tax in the assessment year at such a rate or rates prescribed by the central act and subject to the residential status of that particular person or assessee. This is what the scheme of your taxation, right? मतलब एवरी पर्सन, अब पर्सन को डिफाइन किया हुआ है अदरवाइज एक्ट में। पर्सन इन बोथ केस, पर्सन 231 बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 231 इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 पर्सन इज डिफाइंड एंड सेक्शन बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 277 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025 वहां पे पर्सन डिफाइन करा हुआ है। इसलिए जहां जहां वर्ड है, अगर मैं वर्ड की बात करूं वहां पे पर्सन, वो स्कीम में बोलता है एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम एक्सीड्स। देयर इज सम कंडीशन इन प्रोविजो 7 ऑफ सेक्शन 139(1). वो प्रोविजो क्या बोलता है? दो समवन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश द इनकम टैक्स रिटर्न, राइट सर? इफ ही मेट सर्टेन कंडीशन, दो ही इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द इनकम टैक्स रिटर्न। वो कौन सा कंडीशन है सर? अगर हमने रिटर्न भरा होगा तो हमने देखा होगा कि नीचे प्रोविजो 7 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 139 लिखा हुआ आता है सर। वो कौन कौन से कंडीशन है? अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो कंडीशन नंबर 1, अगर 1 और मोर करंट अकाउंट में पूरे साल में कितना जमा करा है सर? 1 करोड़ रुपए। मैं फॉरेन ट्रैवल पे गया और मैंने खर्चा किया। कितना खर्चा किया? सर 2 लाख रुपए। ये बात बोलता। और मैं कहता हूं भाई आई एम नॉट लायबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न बिकॉज माई इनकम डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज चार्जेबल टू टैक्स। लेकिन मैं ये भी कहता हूं जो मैं साल में मेरा बिजली बिल का खर्चा आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आ रहा है, वो कितना आ रहा है? 1 लाख रुपए। तो मुझे प्रोविजन 7 ऑफ इनकम टैक्स सेक्शन 139(1) वो मुझे ये कहता है कि भाई अगर आपके ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहे, आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न हमें फाइल करो। और फॉर्म को पिक करते समय वहां पे ये 3-4 ऑप्शंस आएंगे, उसको आपको टिक करना हो। देखा है सर आप लोगों ने ये प्रोविजन 7? तो मैं एक्ट के हिसाब से सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सही बोल रहा हूं सर। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। बीच में और भी हैं कुछ एक सेक्शंस और भी हैं जो बोलता है, प्रोविजो और भी है जो मैं फॉर्म लेते हुए वहां पे मैं करा लूंगा। दैट विल कम आउट विद दैट। सर वो करंट अकाउंट लिखा हुआ है, वहां पे करंट अकाउंट लिखा हुआ है। दिस इज वेरी मच क्लियर, राइट? लेकिन इंटेंशन इज दैट, इंटेंशन नहीं है, लिखा तो करंट अकाउंट है,
हाँ, करंट लिखा तो करंट अकाउंट है, यहां पे प्रोविजन 7 की बात कर रहा हूं, राइट। दिस इज सेक्शन 295। लेकिन सर डिपार्टमेंट ही है, इंटेंशन आप समझ सकते हो, राइट। दिस इज व्हाट, बट लिखा अगर आप जाओगे लिटरली एक्ट पे आप जाओगे तो एक्ट इज करंट अकाउंट, राइट। यू हैव टू सबस्टेंशिएट दैट अकॉर्डिंगली। नाउ सर कमिंग टू दी अनदर पार्ट, अब सबसे पहला रूल की बात मैंने करी, रूल 12(1), रूल नंबर 12(1). इससे पहला 295 मैंने डिस्कस कर लिया आपसे, सेक्शन 295 क्या है। कमिंग टू दी अनदर स्लाइड, दिस इज द रूल 12। यहां से कहानी शुरू होती है रूल 12 की, और रूल 12(1) में हम चल रहे हैं, राइट। रूल 12(1), सबसे पहला रूल 12(1) बात करता है कि भाई साहब आपको ITR-1 सहज फॉर्म कब पिक करना है, राइट सर। एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पे लेता हूं सर, क्वेश्चन नंबर 1। अगर मेरे ऑफिस का स्टाफ रिटर्न बनाते समय मेरे पास फॉर्म 16 आया मिस्टर एक्स का, मिस्टर एक्स इज ए डायरेक्टर इन ए कंपनी, मिस्टर एक्स ऑल्सो हैविंग सम unlisted equity shares in his hand of that particular company, right? While punching the data into the system, right? मेरे स्टाफ ने गलती कर दी। क्या गलती करी? उसने डायरेक्टर का इंफॉर्मेशन नहीं डाला, और उसने जो कितने इक्विटी शेयर्स उसने होल्ड करे हुए अनलिस्टेड उसका इंफॉर्मेशन नहीं डाला। सिस्टम कौन सा फॉर्म पिक करेगा? फॉर्म 16 है उसके पास, कौन सा पिक करेगा? ऑटोमेटिकली सिस्टम 1 पिक कर ले। जैसे ही द मोमेंट द फॉर्म पिक करेगा तो आप रूल 12(1) को क्या कर रहे हैं? उसको वायलेट कर दिया आपने। इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन वहां पे चाहिए वो इंफॉर्मेशन आपने पंच नहीं करी। दैट मीन्स यू आर नॉट कंप्लाइंग विद द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन दैट इज देयर विद द रूल 12(1). दिस इज क्लियर वेरी मच, राइट सर। अब ये क्या बोलता है सर? सहज। अब जो चीज जितनी सहज दिखती है ना, वो चीज उतनी सहज होती नहीं है। इसमें सर 2 प्रोविजो है, प्रोविजो 1 एंड प्रोविजो 2। प्रोविजो 1 बोलता है किस कंडीशंस पे आपको फॉर्म 1 पिक नहीं करना है। प्रोविजो 2 बोलता है कि अगर आपने सर्टेन कंडीशंस फुलफिल कर लिए उस कंडीशन में आपको फॉर्म 1 पिक नहीं करना है, राइट। और इसका जो ग्रीन आप देख रहे हैं ऊपर, दैट ग्रीन इज सम नोमेनक्लेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर ITR-1 फॉर्म सहज। वो हम कब करेंगे? फॉर इंडिविजुअल किसके लिए एप्लीकेबल ITR-1? फॉर रेसिडेंट एसएससी, फॉर इंडिविजुअल रेसिडेंट एसएससी अदर देन नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट हैविंग टोटल इनकम ऑफ 50 लाख, राइट, हैविंग टोटल इनकम ऑफ 50 लाख एंड हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी। नंबर 1, हैविंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू हाउ मेनी हाउस? 2 हाउस। ये बात कही इन्होंने। एंड अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 112 कैपिटल ए विच गिव्स एन एग्जम्पशन ऑफ रुपीज 1.25 lakhs। वो भी आप फाइल कर, पहले ये नहीं होता था तो ITR-2 में जाना पड़ता था अकॉर्डिंगली। उसके बाद अगर एग्रीकल्चर इनकम आपको अप टू 5,000 रुपीज है, ओनली देन यू कैन पिक दिस फॉर्म। और नॉट फॉर, देखो सर वेरी कैटेगोरिकली यहां पे मेंशन है 2 चीजें, not for an individual who is either a director in a company or has invested in unlisted equity shares, or in case where TDS has been deducted under section 194(n), or if the income tax is deferred on ESOP, or has assets including the financial interest in any entity located outside India। यानी कि अगर किसी भी फॉरेन एसेट पे मेरा कोई इंटरेस्ट है, whether I am holding any account which is outside India and I am the signatory, I am the authority of that account, signatory authority है मेरे पास में, तो ITR-1 पिक करने के लिए I am not eligible. Sir, ESOP during the sale हो गए। ESOP तो मिला ना सर, this is not applicable, has been deferred। उसके बाद ये कंडीशंस यहां पे क्लियर हो गई सर। अब आते हैं इसके फर्स्ट। देखो सर क्यों मैं ये बात आपको कह रहा हूं कि मुझे रूल 12(1) पढ़ना है। नीचे देखो सर, नीचे वाले लाइन में क्या लिखा हुआ है? दिस इज कैटेगोरिकली, दिस इज मेंशन्ड इन दिस रूल, एक्सेप्ट विनिंग फ्रॉम द लॉटरी और द क्रॉस इनकम फ्रॉम रेस horses does not have any loss under the head, be in form सहज 1।
that is सहज ITR-1 and be verified in the manner indicated therein. ये बात क्लियर हो गई सर? क्यों मैं इसको रिफर कर रहा हूं, कहां से मेरे पास सहज फॉर्म निकल के आएगा, ये फॉर्म निकल के आएगा. दिस इज वन पॉइंट. दिस इज द प्रोविजो 1. रूल 12(1) का प्रोविजो 1 ये हो गया. ये यहां पे सर जो बातें नोमेनक्लेचर में मैंने बताई हैं वही सारी बातें यहां पे लिखी हुई हैं, तो आई कैन स्किप दिस. जैसे कि एसेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, क्या बोलता है, दैट द प्रोविजो ऑफ दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू द पर्सन हु हैज एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, हैज साइनिंग अथॉरिटी in any account located outside India, income from any source outside India, income to be apportioned in accordance with the provision of section 5 capital A, claim deduction under section 57, is a director in a company, held any unlisted equity share, is accessible for the whole or any part of the income on which tax has been deducted at source in the hands of a person other than the assessee. ये बात यहाँ पे लिखी हुई. अब आते हैं सेकंड प्रोविजो पे. सेकंड प्रोविजो क्या बोलता है? Provided that the proviso of this clause shall not apply to a person who has claimed any relief under section 90 capital A or deduction of tax under section 91. ये बात कही यहां पे. दूसरा, एग्रीकल्चर इनकम की बात कर रहे हैं, टोटल इनकम एक्सीडिंग 50 लाख की बात कर रहे हैं. पांचवा, हैज इनकम टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115(BBD)(A) की बात कर रहे हैं, टैक्स ऑन सर्टेन डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम द डोमेस्टिक कंपनी, राइट. हैज इनकम ऑफ द नेचर रिफर्ड टू इन सेक्शन 115(BBE). वो किसकी बात करता है सर? टैक्स on income referred to in section 68, 69 capital A और 69 capital B. उसके बाद in case where a person whose case tax has been deducted under section 194(N). ये टोटल कहानी कौन से फॉर्म की हो गई सर? 1 की बात हुई. यानी कि 1 फॉर्म चूज करने से पहले you need to have the proper due diligence of this entire proviso, number 1 and number 2. So that there should not be any chance of mistake in that particular form. जनरली तो जितने सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली पिक कर रहे हैं, प्रोवाइडेड द इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट. यस सर, यस सर. लेकिन सॉफ्टवेयर वही फॉर्म पिक करेगा. इलेक्ट्रिसिटी वाला नहीं आता. आएगा सर, प्रोविजो आएगा, वो आता है. लेकिन सॉफ्टवेयर सर actually software is solely depend upon the kind of information on the basis of input what it receives, right? On that basis he populate your answer. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना सर, अगर उसको नहीं हम इंफॉर्मेशन डालेंगे तो वो ITR-1 ऑटोमेटिकली पिक कर लेंगे, इसीलिए जरूरी है, राइट सर. सर टैक्स ऑन सर्टेन डिविडेंड है जो डोमेस्टिक कंपनी लेती है, जिसपे अभी इस बार फॉर्म में कुछ रैशनलाइजेशन भी हुआ है, राइट. ये वहां पे भी टैक्सेशन की बात ये कर. अब सुगम के लिए सबसे ज्यादा ये ITR-4 फॉर्म हम कब यूज करते हैं सर? 44AD की बात कर रहे हैं, राइट. और 44AD का मतलब हो गया प्रिजम्पटिव टैक्सेशन. इसमें भी दो चीजें आप देखेंगे, मोर और लेस जितने ये प्रोविजो है मोर और लेस दे मैच विद दी ITR-1. वहां से ये मैच कर रहा है. यहां पे किस पे आएगा सर? एन इंडिविजुअल अचीव एंड फॉर्म, विच फॉर्म अदर देन LLP, उस पे ये ITR-4 एप्लीकेबल होगा. दूसरा, बीइंग ए रेसिडेंट हैविंग ए टोटल इनकम ऑफ 50 लाख, ये भी उसी पे एप्लीकेबल है. एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कंप्यूटेड अंडर सेक्शन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44AD, ADA एंड 44AE. एंड हैविंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए. इसमें भी था 1,25,000 रुपए वाला, जो अगर एग्जेम्पशन है तो चलो हम इसमें फैसिलिटेट कर देते हैं. और नीचे डायरेक्टर भी होगा कोई, और हैज इन्वेस्टेड इन द लिस्टेड इक्विटी शेयर, or if income tax is deferred on the issue or has agriculture income more than ₹5,000 or has the assets located outside India. In that circumstances ITR-4 you cannot pick. ITR-1 and ITR-4 के same conditions यहाँ पे subject to minor changes in that, वो यहाँ पे cover हो रहा है. Accordingly these provision. हाँ जी सर. हाँ सर 2 करोड़ तो प्रिजम्पटिव पे जाता है 44AD में. 44AD की कंडीशन क्या है? When total sales gross receipts turnover does not exceed 2 crore and does not exceed 3 crore subject to the 95% of the digital transaction. ये बात रखी हुई है वहां पे. ये इनकम की बात कर रहे हैं. 2 करोड़ 3 करोड़ का निकाल लो आप 8%. 3 करोड़ का 8% कितना हो गया? 24 लाख रुपए. मैक्सिमम इतना ही होगा ना प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से, इससे ज्यादा तो नहीं होगा सर. मिनिमम की बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा तो आप 3 करोड़ की जगह 3 करोड़ दिखा दो.
क्योंकि वो उस पर नहीं आया ना, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, राइट, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं। उसमें तो प्रोविजन में जब आप जाते हो तो वो तो कहते हैं इनकम डीम टू बी हैव अर्न, वो इनकम डीम टू हैव अर्न मोर, जो भी है वो दोनों आपको क्लेम करना है, डिपेंड अपॉन दैट। तो ये कहानी आ गई फॉर्म की ITR-1 ITR-4। अब इस दोनों फॉर्म में क्या चेंजेस हैं इस बार, अब हम उस पॉइंट पे चलते हैं, क्योंकि फॉर्म का रूल पता लग गया, कहां से जनरेट होता है ये हमने देख लिया। नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि सर व्हाट एक्चुअली चेंजेस आर देयर इन दिस ईयर। नंबर 1, सबसे पहला, अभी तक सर आप लोगों ने क्या क्या चेंजेस देखे, कुछ चेंज नोटिस किया होगा। सबसे पहला चेंज नोटिस क्या होगा कि यार इस बार सेकेंडरी एड्रेस मांग रहा है, फॉर्म में सेकेंडरी एड्रेस आ गया, राइट, वो सेकेंडरी एड्रेस मांग रहा है। दूसरा, बहुत सारे चेंजेस हैं। पहले मैं नीचे एक समरी मैंने बना रखा है, पहले वो समरी डिस्कस करते हैं सर, फिर उसके बाद मैं ये कॉलमनर शेप में ये आपको डिस्कस करा दूं। उसमें सारे ये यहां से जो सारे चेंजेस हैं, ऑलमोस्ट 22 टू 25 चेंजेस जो मुझे लोकेट हुए, मैंने यहां पे उसको डिस्क्राइब किया अकॉर्डिंगली। सबसे पहला चेंज, रैशनलाइजेशन इन द डिटेल sought to be representative assessee. अगर if you have asked your representative person to file your income tax return on your behalf, right, then the new fields has been enabled in the ITR form. वो क्या क्या, whether this return is being filed by a representative assessee, अगर आप कहते हैं yes, please furnish the following information. कौन कौन सा सर, name of representative assessee, email ID of the representative assessee and contact number of the representative। ये 3 चीजें इस बार उन्होंने कहा कि आपको डालना है, ये पार्ट यहां। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी एड्रेस, इस बार से वो सेकेंडरी एड्रेस आ रहा है, वो कैसे आ रहा है सर, इस तरीके से सेकेंडरी एड्रेस आपके फॉर्म में पूछ रहे हैं। डिटेल्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर द कम्युनिकेशन पर्पसेस। नंबर 1, फर्स्ट क्या, प्राइमरी ईमेल आईडी ऑफ द टैक्स पेयर, प्राइमरी मोबाइल नंबर ऑफ द टैक्स पेयर, दिस इज द प्राइमरी एड्रेस, और नीचे यहां पे एड्रेस दे दिया। फिर नीचे लिख रहे सेकेंडरी एड्रेस, और बीच में रेड में एक क्वेश्चन है, इज द सेकेंडरी एड्रेस सेम एज द प्राइमरी एड्रेस। वहां पे अगर आप टिक मार देते हो तो ऊपर वाला रेप्लिकेट हो जाएगा नीचे, दैट इज सेम। यानी कि तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि ऊपर वाला भी नीचे हो सकता है, दैट इज क्लियर। कंपलसरी है सर, जेओसन ही नहीं बनेगा जब तक सेकेंडरी एड्रेस आप टिक नहीं करोगे, वो जेओसन नहीं बना रहा, वो एरर दे रहा है, राइट। तो दिस इज नाउ बिकम कंपलसरी एज ऑफ नाउ। नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट चेंज as far as the presumptive taxation, sorry, as far as the option and future trading is concerned, वहां पे पहले ये नहीं था। जब हम रिटर्न भरते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट जब आता है, जब ट्रेडिंग अकाउंट से नीचे की तरफ आप जाते हैं वहां पे कॉलम 12 आता है, देखा होगा सर। कॉलम 12 के ऊपर आप जाएंगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग पूछता है, राइट सर। उसके बाद पूछता है कि इनकम फ्रॉम इंट्राडे ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमने ट्रांसफर करा, टर्नओवर आ गया, इनकम आ गया। उसके बाद ये जो 2 आप देख रहे हो ना सर, उसमें जो 12C इस बार डाला फॉर्म में कि भाई हमारे को अब आप बताओ कि टर्नओवर फ्रॉम फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग कितना है, वो इंफॉर्मेशन यहां पे आपको देनी है। और नीचे वाला तो पहले भी था कि इनकम फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट वाज देयर। न्यू फॉर्म मैंने रेड इसलिए किया हुआ है कि दोनों कोरिलेट करते एक दूसरे को, राइट। दिस इज वन न्यू चेंज। अभी क्या कहते हैं, शेड्यूल 8 पार्ट ए ट्रेडिंग अकाउंट इन ITR फॉर्म, ये बोला उन्होंने, द न्यू ITR फॉर्म हैव इंट्रोड्यूस्ड द स्पेसिफिक कॉलम टू रिपोर्ट टर्नओवर फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एंड द इनकम फ्रॉम सच ट्रेडिंग दैट इज क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बात यहां पे करी। इसके बाद अगला चेंज जो हम हमेशा इस पर्टिकुलर चेंज में, एक सेक्शन है सर इनकम टैक्स एक्ट में 1961 में, सेक्शन 43B है ना सर। उसमें क्लॉज ए से लेके क्लॉज जी का ट्रीटमेंट हमें पता है भाई, दैट इज पेमेंट अलाउंस ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। लेकिन जो 43B में क्लॉज ए से लेके क्लॉज जी तक है, उसके खर्चे अगर आप बिफोर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप पे कर देते हैं तो दैट इज अलाउड। अब अगला आता है H 43
बी एच, इस पे रिस्ट्रिक्शन है, राइट। अब इस पे क्या रिस्ट्रिक्शन है कि भाई अगर आपने एमएसएमई एक्ट के तहत सेक्शन 15 के तहत अगर आपने उनको 45 डेज एंड 15 डेज सब्जेक्ट टू हैविंग नो अग्रीमेंट एंड कम्युनिकेशन, अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो वहां पे एक डिसअलाउंस है, उसके बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट का प्रोविजन भी देने की बात ये करते हैं। तो अब उन दो पर्टिकुलर सेगमेंट को फॉर्म में रिपोर्ट करने की बात है कि भाई उसको हम कहां पर रिपोर्ट करेंगे, ये उसकी बात कर रहे हैं। अब वो यहां पर रिपोर्ट करेंगे। अगर हम देखते हैं तो क्लॉज ए से लेके जी तक, यहां तक तो हम सब करते आ रहे थे अभी तक। नीचे एच का पॉइंट देखेंगे सर, एनी सम पेएबल टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 15, राइट सर। सेक्शन 15 में 2 टाइम लिमिट है, याद है ना आप। अगर एग्रीमेंट है तो 45 दिन और एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन हमारे को पेमेंट कर देना। मीडियम एंटरप्राइजेस यहां पे ये चीज आपको यहां बताना है सो दैट कि यहां पे हम कम टोटल अमाउंट डिसअलाउएबल अंडर सेक्शन 43B एक साथ निकल के आ जाए। ये पहले दिक्कत आ रही थी, ये पॉइंट यहां पे डाला इन्होंने। चलो अब कमिंग टू दी अनदर पॉइंट। अनदर पॉइंट क्या है सर, रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर फॉर द इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन ड्यू और रिसीव्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब एक इंडिविजुअल 4-5 फॉर्म में पार्टनर हो सकता है सर। हर फॉर्म से उसको रेम्यूनरेशन आ सकता है, हर फॉर्म से इंटरेस्ट आ सकता है कंप्लीटली। उसी को कहा इन्होंने कि आपको द ITR फॉर्म नोटिफाइड फॉर द असेसमेंट ईयर 2026-27 इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग 2 एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। कौन कौन सी? फर्स्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू और रिसीव्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म, नंबर 1। नंबर 2, अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन ड्यू और रिसीव्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म। ये 2 चीजें आपको, अब वो कैसे डिस्क्लोज करना है, किस शेप में खुलेगा, वो इस शेप में आएगा सर, शेड्यूल IF, राइट। शेड्यूल IF में ये जो रेड वाला आप 2 कॉलम देख रहे हो ना सर, ये 2 कॉलम इंट्रोड्यूस हुआ है इस बार, ठीक। क्या कह रहा है ये, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू और रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन ड्यू और रिसीव्ड, ये 2 चीजें हमें देनी है। ऊपर नंबर ऑफ फॉर्म बोलता है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पार्टनरशिप फॉर्म इन विच यू आर अ पार्टनर एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कभी भी है और चले गए, लेकिन इंफॉर्मेशन हमें जिस समय थे उस समय ये क्या आपका ड्यू बनता है और कितना है, दैट इज नाउ मैंडेटरी टू बी रिपोर्टेड इन योर ITR फॉर्म्स। दिस इज वन इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा सर, इस बार आपको पता होगा बजट में बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक चेंज आया था, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू बिलेटेड रिटर्न। उसमें कुछ रैशनलाइज किया था ड्यू डेट को, अगर आपको याद हो तो। पहले से रिटर्न फाइल करने की टाइम के रिटर्न रिवाइज बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का क्या टाइम होता था? 31 दिसंबर तक हम करते थे। तो दे जस्ट ऑब्जर्व देयर इज सम जेन्युइन हार्डशिप फॉर द SSE if any SSE filed belated return on 31st of December. Later on he realized there is some information which was escaped from report, right, and he observed some mistake was there in the form, some omission was happened, so he was not having any opportunity to rectify that mistake. To overcome with this situation, the Income Tax Department and the Budget 2026 has recommended certain changes on the due on this particular section 139(5), 139(4). क्या बोला इन्होंने कि भाई आप जब अपना बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं अप टू 31 दिसंबर तक, तो आपसे हम 2 फीस चार्ज कर लेते हैं, राइट। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आपसे हम कितना पैसा ले लेते हैं? 1000 रुपए ले लेते हैं। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, हम आपसे कितना ले लेते हैं? 5000 रुपए ले लेते हैं, राइट। अब सिचुएशन अराइज हुआ कि सर किसी ने 31 दिसंबर को रिटर्न फाइल किया और उसको मार्च में जाके रिवाइज कर रहा है, तो हम आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट में हम आपसे फीस भी ले रहे हैं। वो फीस लेने के लिए एक सेक्शन स्पेसिफाई करा, वो सेक्शन है सेक्शन 234I, राइट।
और उस सेक्शन 234I में सेम रेट प्रिस्क्राइब कर दिया, ₹1,000 where the total income does not exceed ₹5 lakh and ₹5,000 in other cases. The new ITR form incorporate a column to report fees paid under section 234I for furnishing the revised return of that particular income. यानी कि 31 दिसंबर तक एक फीस लगी, उसके बाद मैं रिवाइज कर रहा हूं, तो मैं दोबारा ये फीस उनको पे कर रहा हूं. दिस इज वन अनदर चेंज. एक अगला, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज इस बार दिया पॉलिटिकल पार्टी के केस में. क्या होता है कि 31 मार्च में जितने सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं जनरली, दे कीप ऑन डोनेटिंग. जनरल सी बात, every March month their pocket were just flooded with lot of fund and they start donating to the electoral trust and to the political party, right sir? Last year some incidents was happened and lot of cases, similar cases were picked for the scrutiny, right? So sir, what actually was observed from that particular cases and instances, that the person who made the payment in the shape of donation to the political party, the basic condition of the political party is to be, they needs to be registered political party by virtue of section 29 capital A of Representation of People Act of India, right? So there are certain documents, there are certain criteria which needs to be fulfilled, while the some party to be treated as the political party registered under section 29. It was observed that the donation made to the particular political party, they do not qualify the condition, and accordingly they cease to be political party on the date when the donation was made. Accordingly, what was happened, sir? Whatever donation was made were added back and get disallowed. It was happened, right? So with a view to all those provisions and all those ignorance and all those issues that were triggered in the income tax return, they made certain changes, they made some additional requirement to be submitted. अब additional requirement क्या आ गई सर? अगर आप political party को donate कर रहे हैं, you need to furnish name and PAN of the political party. That is very important part. The new ITR form required 2 additional details for the taxpayer seeking a deduction under section 80GG. Taxpayer are required to provide the name of the political party and its PAN under the schedule of 80GG. उसके बाद 80G में भी एक चेंज लेके आए. 80G में क्या चेंज लेके आए कि भाई अगर आप डोनेशन दे रहे हो तो आप हमें 2 चीजें बताओगे. पहला, आप हमें बताओगे कि भाई आपने जो ट्रांजैक्शन करा है उस ट्रांजैक्शन का ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर क्या है, और दूसरा आप हमें बताओगे जिस बैंक से आपने ट्रांसफर किया है उस बैंक का IFSC कोड क्या है. ये चीज इन्होंने बोला इस पर्टिकुलर. एक ये दोनों इस बार डाला है उन्होंने 80G में. 80G का जो बेनिफिट ले रहे हैं, जब आप व्हेन द डोनेशन नहीं ले रहे तो जरूरत ही नहीं है. ये पर्सन हु इज टेकिंग दी, वहां पे ये इंफॉर्मेशन देने की. और मेजरली इस बार जो ITR 7 वाली बात है ना, दे ऑल्सो वांट टू फाइंड आउट व्हाट लूप्सेस आर देयर, हाउ पीपल आर मिसयूटिलाइजिंग दिस प्रोविजन. तो उसको पकड़ने के लिए दे हैव मेड सर्टेन चेंजेस इन दी एक्ट. ट्रांजैक्शंस, दिस पार्ट इज वन. अच्छा, एक और चेंजेस आया सर इस बार, बड़ा इंपॉर्टेंट सा. अगर द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ही इज द बिजनेस एसएससी एंड ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड, करेक्ट है सर कान? उस केस में जो बजट आया था इस बार, इस बजट में इन्होंने कहा कि जी ऐसे एसएससी के लिए हम 1 महीने का टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं, राइट? तो उन्होंने 31 अगस्त कर दिया था फॉर दैट दोज एसएससी. The due date of filing the return of the income for the such taxpayer has been extended from 31st of July to 31st of August, right? The ITR 3 form for the assessment year 26-27 incorporates this change, and accordingly in Part A General, which required the SSC to specify the applicable due date for filing the return of income, the due date 31st of July has been substituted with the 31st of August. This is the new change. ITR, मैडम उसमें लिखा हुआ है बजट में ITR 1 और ITR 2. आप जब पढ़ोगे उसको, अभी अगले स्लाइड में मैं दिखाता हूं कि ड्यू डेट में किसको स्पेसिफाई करा था बजट में उस केस में. यस मैडम,
अब अगला बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज, इसके लिए मैं आप सर जो ये एक्ट बोल रहा है उसके हिसाब से तो बिजनेस एसएससी के केस में उस बुक्स ऑफ अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड, राइट। लेकिन जो बजट आया है उस बजट में इन्होंने ITR-1 और ITR-2 एसएससी के लिए स्पेसिफिकली 31 जुलाई का है। अभी मैं दिखाता हूं आपको, हाँ उसका वो भी मैं दिखाता हूं आपको। अच्छा सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर सा चेंज, दैट चेंज इज एसएससी opting for the presumptive tax scheme required to disclose the investment made by them. ITR-4 no, ये चीज अपने को पता है कि जब हम ITR-4 भरते हैं तो देयर आर सर्टेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, राइट। अब वो मैं जरा पुराने स्लाइड्स पे चलता हूं, एक पर्टिकुलर जो मैंने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो सबमिट करना है, इस बार से उन्होंने एक 12A फिक्स एसेट के नीचे एक इन्वेस्टमेंट डाला है जो अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए सर, पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन, राइट। यही शेप आता था सर, इसी शेप के अकॉर्डिंग हम भरते थे इंफॉर्मेशन अपना। अब ये कह रहे हैं कि दी फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस एज फार एज सेक्शन 44 ADA इज कंसर्न, दिस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन। सर इसे बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात यहां पे लिखी हुई है कि 4E नीचे देखते हैं, E15, E90, E20, E20 पिछले साल कितने इंफॉर्मेशन कंपलसरी थे सर? 4, इन्वेंट्री, डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड कैश एट बैंक, राइट। इस बार कितने कंपलसरी करे हैं सर? इस बार 5, कैश एट बैंक, ये नया जोड़ दिया इस बार। तो इसका मतलब E15, E19, E20, E21, 22 आर मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब डिस्क्लोजर से। अब वहां पे डिस्क्लोजर जो हम करते हैं तो कितना सही करते हैं, गलत करते हैं, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, राइट। उसके बाद नीचे लिखा अदर्स इफ अवेलेबल, अदर इफ अवेलेबल। और इंटरेस्टिंग सी चीज बताऊं आपको मैं, this is required as on 31st day of March 2026. Though the person who is opting the presumptive taxation is not required to maintain the books of accounts, and you are asking them to provide the information which will be derived from the books of account, right? It means कि indirectly उनके माइंड में ये चल रहा है कि चलो this is how to get the fund through the presumptive taxation, वो एक पार्ट हो गया, but as far as the disclosure of information is required, एनी हाउ दैट इज नीडेड, आप वहां पे इंफॉर्मेशन हमें सबमिट करें। तो सर यहां पे ये चीज जो E18 कैपिटल ए, E18 स्मॉल ए है, वो इस बार इन्वेस्टमेंट इन्होंने डाला है, राइट। यानी कि इस पार्ट में ये आ गया कि अगर आपके पास में इंफॉर्मेशन है और आप डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं तो यू कैन डिस्क्लोज दैट। बिजनेस की सर, सर 44 AD में ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देने की कब आवश्यकता होती है? अगर आप खाली काम ही कैश में कर रहे हो तो बैंक अकाउंट है उसका। आप 44 बैंक अकाउंट तो दे ही रहे हैं ना सारा, आपकी बैलेंस शीट टोटल टैली हो रहा है, नीचे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। हाँ, और बैंक है नहीं उसका, बैंक बिजनेस का। हाँ, बिजनेस का बैंक नहीं है तो जीरो डालना है। नहीं, बिजनेस का बैंक नहीं है तो 44 AD तो बिजनेस पे एप्लीकेबल है ना सर। तो कहां से कर रहे? और तो आप कह रहे हो कि ना उसके पास में कैश है ना उसके पास में अकाउंट है, वो कैश आता है, कैश से खर्चा करता है, फिर कैश ही ले जाके रख देता है। तो कैश इन हैंड तो दिखाना है ना सर, तो कैश इन हैंड तो दिखो, बट दिस इज अ वेरी इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन, इम्प्रैक्टिकल। क्योंकि अगर कहते हो कैश से मैं बड़ा बिजनेस करता हूं सर, 45 डेज का टाइम तो जीएसटी पोर्टल देता है, अगर बैंक अकाउंट अपडेट नहीं करोगे तो वो डीएक्टिव हो जाएगा। अगर आप बिजनेस उसी अकाउंट से कर रहे हैं तो मैडम वही जाएगा ना, है ना। पीपीएफ वगैरह नहीं, पीपीएफ नहीं, पीएफ इन्वेस्टमेंट का आपको जो फिक्स डिपॉजिट का बैलेंस है वो भी नहीं जाना। बैलेंस बैंक बैलेंस मतलब बैंक बैलेंस, हाँ। सर बैंक बैलेंस और एफडी इन्वेस्टमेंट हो जाता है दोनों। बैलेंस बैंक का मतलब जहां तक मैं वो तो इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन जाएगा सर।
हाँ, वो इन्वेस्टमेंट के पार्ट में। यस सर। सर क्लाइंट के नाम पे एक सेविंग बैंक अकाउंट है, क्या है? क्लाइंट है एक सेविंग बैंक अकाउंट। अच्छा, और ही इज डूइंग बिजनेस, रिसिट किस अकाउंट में आ रहा है? सर मतलब कभी किसी का अरे तो सारे बैंक, ऑल बैंक, मतलब दिस इज सम शॉर्ट ऑफ माइंड यू वी नीड टू अप्लाई कि भाई आप बिजनेस रिसिट कहां पे ले रहे हो? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। और दिस इज अ नॉन कंप्लायंस अदरवाइज एज फार एज द बिजनेस स्ट्रक्चर इज कंसर्न। आपका करंट अकाउंट क्यों नहीं है? दिस इज अनदर कॉल, राइट? तो सर दिस इज वन पार्ट। आई होप दिस चार्ट इज क्लियर सर। दिस चार्ट जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, दिस चार्ट इज वेरी मच क्लियर और सम शॉर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन। ये सर कुछ नहीं है, बैलेंस शीट है इनडायरेक्टली। टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। एसेट को बाइफरकेट कर दिया, लायबिलिटी को बाइफरकेट कर दिया। एसेट में पहले टोटल फिक्स एसेट था, नीचे इन्वेस्टमेंट दे दी। अब आप दिखाओ। और इन्वेस्टमेंट के पीछे लॉजिक क्या है जो मेरे समझ में आ रहा है, जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जब आप प्रॉफिट ऑफर करते हो कि जी मेरा 8%, 10%, 15%, 20% ये मेरा प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट डिस्क्लोज करने के बाद और जब इन्वेस्टमेंट उधर आप दे रहे हो, वो वाला प्रॉफिट वो वाला इन्वेस्टमेंट आपस में जब थोड़ा सा लिंकेज जिसका नहीं होता, तो दे मे पिक सम एडवर्स ओपिनियन इन दैट सिचुएशन, राइट? तो सर ये पर्टिकुलर पार्ट यहां पे आ गया। तो यहां पे जो वो मैंने बात करी थी, जब इस स्लाइड पे मैं पहुंचा था, तो वो वहां पे बात करी थी इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोज करना है। तो इन्वेस्टमेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया, ये अपने को क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा अब इसमें। यस मैडम। पर्सनल इन्वेस्टमेंट नीड नॉट बी मैडम पर्सनल, हाँ, दैट इज ये बिजनेस, यानी कि जब मैं एआईएस में बड़े सारे आ जाएंगे, परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल दैट। सर म्यूचुअल फंड वगैरह सारी चीज तो कैपिटल गेन का पार्ट बन जाए। एट 31 मार्च 2026 में दैट इज योर पर्सनल इन्वेस्टमेंट, दैट इज योर कैपिटल से सब्सटेंशिएट होगा। परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट। मैडम वेदर यू आर ऑप्टिंग सेक्शन 44 AD और ADA, are you opting that? If you are opting, then you need to segregate that investment. And as far as the form is concerned, this particular 12A, 18A small is not mandatory to be disclosed, right? This is how. Otherwise, फिर तो पूरी बैलेंस शीट बना करके इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहे हैं सर 31 मार्च 2026 का। आप जो बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे पास 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। आप समझ सकते हो? नहीं मतलब सर के पास 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, मेरे तरफ देखने लग गया सर। हाँ? नहीं, आप सबके अकाउंट में सपोज करो इससे भी ज्यादा जितना आप फील करो इन्वेस्टमेंट है, तो क्या मैं 31 मार्च में डिस्क्लोज करूं? सब्जेक्ट टू दैट, कमिंग टू दी अनदर पार्ट, फॉर्म नंबर ITR 7। तो सर यहां तक मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं आपको सर अच्छे तरीके से। कमिंग टू दी अनदर, यही वाला पॉइंट है ना सर, अमेंडमेंट नंबर 10, जो इन्वेस्टमेंट की बात हम कर रहे थे, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। दिस पार्ट इज क्लियर सर। ये पॉइंट मैंने वहां से आपको क्लियर करा दिया कि अब इसमें फिर फर्दर कोई क्वेश्चन अराइज ही नहीं होते। देयर इज लॉट ऑफ क्वेश्चन कि सर क्या करना है, नहीं करना है। नाउ इट्स क्लियर। अभी जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं लिखा है फॉर्म में, जो हाईलाइट करके लिखा है दैट इज मैंडेटरी। अदर्स इफ अवेलेबल, अवेलेबल का क्या मतलब है वो डिफाइन नहीं किया। सरकार अगर चेक कर लेगी और आपने तो दिक्कत है सर सरकार तो बहुत दिनों से प्रिजम्पटिव टैक्सेशन चला रही है, उसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम कहां से, दे जस्ट वांट आवर टैक्स पेयर टू बी लॉयल, कि भाई आप जितने लॉयल होगे डिपार्टमेंट और आप दोनों ही उतने ही लिटिगेशन से फ्री होगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिपार्टमेंट इज, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री is to reduce the compliance burden and to facilitate the ease of doing business. Very important part. और तीसरा objective, how to provide the ease of life. ये तीन ऑब्जेक्टिव लेकर के हम जब आगे बढ़ते हैं तो वी विल फाइंड आउट। सिमिलरली इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए द इनकम टैक्स एक्ट 2025 हैज बीन कम इनटू द प्ले। आज थोड़ा सा प्रियम्बल में बता देता हूं आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 का प्रियम्बल क्या है। द प्रियम्बल ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 इज द एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। दिस इज द इंटायर प्रियम्बल ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये बात है दोनों में।
अब आप देखेंगे जब 25 में आप जाएंगे तो दुनिया भर की चीजें एक साथ कंसोलिडेट हो रही है, दिक्कत का काम भी तो नहीं है। हो रही है, बट अच्छा है ना सर जितना। टीडीएस जमा करा रहे हैं और वो कह रहे हैं ओहो subsection सर, कोई भी चीज नहीं सर, टीडीएस की बात अगर आप कहते हो तो टीडीएस को तो बड़ा बढ़िया रैशनलाइज किया है सर। जमा कराते मैं बताऊं आपको चालान में जमा करा दिया है। सर, क्या, हाँ देखो सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताऊं सर, जो दैट वाज रियली क्रिएटिंग सम कंफ्यूजन, द लॉट ऑफ रिप्रेजेंटेशन वेर सेंट टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री with respect to certain terms that were there in the Income Tax Act 1961. वो क्या था सर? तो the two terms were there. एक प्रीवियस ईयर, दूसरा असेसमेंट ईयर। वो तो बेस्ट है ही। सर सुनो, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं इसके कंटेक्स्ट में। इसके वजह से गलतियां क्या होती थी? अगर टैक्स डिपॉजिट करना है तो ऑफिस में लड़के को बिठा के भाई दे कि यार गलत ना हो जाए। सर एक वो तो कम हुआ मेंटल प्रेशर। फॉर्म जो नया आया है वो इतना बढ़िया कर दिया, इतना बढ़िया 100 वही सर, वही बात मैं बता रहा हूं। और ये चीज अगर मैं नहीं सर, प्रॉब्लम है ना। अब टैक्स सुनो सुनो सर, एक बात सुनो, एक चीज आप बताओ, जो माय टॉपिक इज 1961 चेंजेस इन, इवन आपने ये मैटर छेड़ दिया है तो मैं आपको बताता हूं टैक्स ईयर की जो बात इन्होंने कही है। सर अभी तक इनकम टैक्स एक्ट में जो फाइनेंशियल ईयर टर्म है वो ना तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में डिफाइंड है, ना इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डिफाइंड है। तो इसका हम लेते कहां से हैं? जनरल क्लॉज एक्ट 1897 से हम इसका रेफरेंस कर लेते हैं। और वो क्या बोलता है सर? द फाइनेंशियल इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्ट फ्रॉम द 1st of April and end with the 31st of March। सिमिलरली, और यहां पे जब इन्होंने प्रीवियस ईयर और टैक्स ईयर, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर को जब रैशनलाइज करने की बात करी तो दे फर्स्ट ऑफ ऑल दे रियलाइज की जात व्हाट इज एक्चुअली द असेसमेंट ईयर, रिलेवेंस ऑफ असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर किसके ऊपर डिपेंड करता है सर? हाँ, प्रीवियस ईयर के ऊपर ना, क्योंकि एवरी टाइम असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर। तो दे मेक अ चेंजेस। व्हिच चेंजेस सर? दे मेड अ चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द टैक्स ईयर। डिफिनेशन दिया सेक्शन 3 में, और सेक्शन 3 में यह बात कही उन्होंने, tax year means the period of 12 months contained in the financial year, which starts from 1st of April, with two exceptions. Exception number 1, if someone commences the business during the year and the source of income come into the existence, जिस दिन source of income आया उस दिन से लेके 31st of March will be the tax year, और जिस दिन मैंने business commence किया तब से लेके 31st of March would be the my tax year for the new business. This is what the definition of income tax year. जो इन्होंने ये बात कही किसके ऊपर? इट पीरियड ऑफ 12 मंथ कंटेन इन दी फाइनेंशियल, ये डिफिनेशन है अकॉर्डिंग। तो ये पार्ट कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, तो दे जस्ट रियलाइज्ड आफ्टर दी 1962 से लेके अब तक, इन अ बिग स्पैम ऑफ टाइम, वी रियलाइज ऑफ कोर्स दिस इज सम प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टी इन द टर्मिनोलॉजी। दे जस्ट रैशनलाइज दीज प्रोविजन एंड इनकॉर्पोरेट इन द इनकम टैक्स एक्ट 2025। राइट सर? कमिंग टू माय अनदर अमेंडमेंट, दिस पार्ट। अब ये दूसरा था ITR 7 में क्या था? टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय द चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टेड ऑफ इट्स नॉमिनल वैल्यू। पहले हम नॉमिनल वैल्यू डिस्क्लोज करते थे सर, अब इन्होंने बोला आपको टोटल वैल्यू डिस्क्लोज करना है ITR 7 में। ये बात आ गई। दूसरा, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज, भाई अगर आप किसी एक्ट में रजिस्टर्ड हो, किसी भी दूसरे लॉ में कोई भी रजिस्ट्रेशन आपने लिया हुआ है, देन यू नीड टू डिस्क्लोज दैट वैलिडिटी पीरियड, डेट अप टू विच such registration is valid, and accordingly where a trust or institution hold registration under any law or portal other than the Income Tax Act, it is now required to report the validity expiry date of the such registration. अब ये इन्होंने कंपलसरी कर दिया, राइट? कमिंग टू दी अनदर पार्ट, रिपोर्टिंग ऑफ इनकम फ्रॉम द प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन एप्लीकेबल टू द नॉन रेसिडेंट। एक पर्टिकुलर सेक्शन था सर, कौन सा सेक्शन था? 44B, BB, BBA, BBC, BBD। इसमें सर एक रिपोर्टिंग प्रॉब्लम थी, टर्नओवर नहीं आता था और ग्रॉस रिसिट का फिगर नहीं आता था, और प्रॉफिट कितना हुआ वो फिगर कहीं पर रिपोर्ट नहीं करना होता था, इंफॉर्मेशन ही नहीं थी फॉर्म में, दोगे कहां से? तो ये बात यहां पे इन्होंने लिखी, नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर इज नाउ रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द ग्रॉस रिसिट्स टर्नओवर एंड नेट प्रॉफिट फ्रॉम द सच बिजनेस इन द न्यू कॉलम दैट इज अमेंडेड इन दिस ईयर। अकॉर्डिंगली द न्यू चेंज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इंटरेस्ट कहां दिखाते हैं सर? इंटरेस्ट इनकम कहां पे आता है?
इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और हमारे पास कौन कौन से ओपन फील्ड है इन इनकम टैक्स फॉर्म, वो देखो सर, सेविंग अकाउंट आता है सर, दिखाना होता है, फिक्स डिपॉजिट, डिपॉजिट्स ये सारे दिखते हैं, बॉन्ड्स आता है, इनकम टैक्स रिफंड आता है, सारी चीजें आती हैं उसमें। नहीं आती थी अगर किसी कंपनी से इंटरेस्ट आया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से ब्याज आया, हाउसिंग बैंकिंग कंपनी से, HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से ब्याज आया, उसका इंटरेस्ट का कॉलम नहीं था। तो इस बार उन्होंने वो इंटरेस्ट का कॉलम डाल दिया, अदर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट फ्रॉम कंपनीज, NBFCs एंड HFC। ये बात यहां पे दे दी। हाई राइज बिल्डिंग में दिया हुआ था, अब उसका भी हाई राइज बिल्डिंग जो है वो रेजिडेंट है, उसके अंदर नो इंटरेस्ट बेस्ड सिक्योरिटी लेके 2 लाख रुपए 10 लाख रुपए, हाँ मेंबरशिप का उसमें ब्याज आता है, तो इसके अंदर अदर, हाँ अदर्स में डाल के ले लेंगे सर। सब ब्याज को तो कहीं भी चार्जेबल टू टैक्स कर ही देना है ना सर, अकॉर्डिंगली। अच्छा सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज थी कि अगर मैं कोई फॉरेन एसेट आउटसाइड इंडिया होल्ड करता हूं और किसी अकाउंट में मैं सिग्नेटरी हूं, अथॉरिटी हूं, तो मैं ITR-1 और ITR-4 पिक नहीं कर सकता। फॉर्म में एक टेक्निकल एरर था। अब एरर क्या था, एक रिक्वायरमेंट थी, अगर मैं रिलीफ क्लेम करता हूं सेक्शन 89 कैपिटल A का, तो वहां पे एक अकाउंट का रेफरेंस मुझे देना होता था, फॉरेन रिटायरमेंट अकाउंट, जो पर्टेन था ITR-1 में और ITR-4 में। इस बार उन्होंने वो फॉरेन रिटायरमेंट अकाउंट ITR-1 और 4 से रिमूव कर दिया, हटा दिया उसको, बोले कि दैट वाज नॉट रिलेवेंट मच। तो उसके बाद अमेंडमेंट नंबर 16 ये बोलता है रैशनलाइजेशन ऑफ ऑडिटेड डिटेल्स शॉर्ट इन ITR फॉर्म्स 3, 5 एंड 7। वहां पे ये बात कही कि भाई आप ऑडिटर की डिटेल भी अपने को सबमिट कर दें, राइट सर। और वो क्या सबमिट कर दें, डेट ऑफ फर्निशिंग द ऑडिट रिपोर्ट, एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, नेम ऑफ ऑडिटर और पैन ऑफ द प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। दैट इज पहले भी था, एक इंफॉर्मेशन नहीं था, बट इस बार इन्होंने इलाबोरेट किया है इसको। यस सर, ये सारा इंफॉर्मेशन टैक्स ऑडिट का तो पहले हम डाल देते, और कोई ऑडिट रिपोर्ट दैट इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन द ऑडिटर। एक सर इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी पहले, अगर 23 जुलाई 2024 से पहले अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है शेयर्स, कैपिटल शेयर में, इक्विटी शेयर्स वगैरह में, तो आपको 23 जुलाई 2024 से पहले और 23 जुलाई 2024 के बाद वो इंफॉर्मेशन अपने को अलग अलग करके दिखाना होता था, राइट, क्योंकि वो एक डेट आया था। आइए मनोज जी, गुड इवनिंग। तो अकॉर्डिंगली इन द ITR फॉर्म ये पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट थी, दैट रिक्वायरमेंट इज नाउ रिमूव फ्रॉम द ITR। किस साल की बात कर रहे हैं? मैं 25-26 की बात कर रहा हूँ, 25-26 की बात कर रहा हूँ। इस साल तो सब टैक्स ईयर आ गया ना। हाँ, 24-25 के लिए भी था, बट इस प्रोविजन के तहत से ऐसा लग रहा था कि आगे भी मांग रहे हैं, आफ्टर डेट लिखा होता है, इस वजह से उसको यहां से हटाया। उसके बाद सर एक ये इंपॉर्टेंट, हाउएवर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024, रिमूवल ऑफ शेड्यूल BBS इन ITR-6 ड्यू टू शिफ्ट इन द बायबैक टैक्सेशन ITR-6, यानी द टैक्सेशन मैकेनिज्म हैज बीन शिफ्टेड। क्या शिफ्टिंग करी सर? वेयर बाय द बायबैक प्रोसीड्स आर नाउ टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, राइट, और companies are no longer required to pay tax on such transaction. As a result, the relevance of the schedule in ITR-6 has ceased, leading to its removal from the assessment year 2026-27. ये पार्ट भी यहां से रिमूव कर, यानी कि in order to make the form simple or reduce the compliance burden, they said कि जो रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर्म की और वो रिडंडेंट है, उसको रिमूव कर दो फॉर्म से, कोई जरूरत नहीं है उसको। एक सर पर्टिकुलर इनकम है 44BBD, जिसका नॉन रेसिडेंट के लिए हम यूज करते हैं। यहां पे कुछ नए चेंजेस आए थे। ITR फॉर्म हैव इनकॉर्पोरेटेड सेक्शन 44BBD सिमिलर टू सेक्शन 44BBA, indicate legislative intent to extend the same treatment, suggesting the tax audit may not be required in such cases. ये बात यहां पे इस पर्टिकुलर चेंज में ये डाला था। आइटम नंबर 20 सर, आपको पता है कि एक जो टैक्स TDS का एक रैशनलाइज्ड रेट है, कंसेशनल रेट है 9%, इस इंटरेस्ट पे हम 9% TDS डिडक्ट करते हैं। तो न्यू ITR फॉर्म ए कॉलम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन शेड्यूल OS टू कैप्चर द इंटरेस्ट इनकम स्पेसिफिकली। 194 LC की बात कर रहे हैं, राइट, 194 LC वहां पे आ रहा है, दिस चेंज विल फैसिलिटेट मैचिंग द TDS क्रेडिट। अब ये दो बड़े इंपॉर्टेंट चेंज,
अब ये दो क्या चेंज आए हैं सर? एज फार एज ITR 7 इज कंसर्न, in the revised form ITR 7, by virtue of section 13(3) small b, right, the form specifically require reporting of the name of the person whose contribution to the trust or institution exceed rupees 1 lakh rupees, and or whose aggregate contribution up to end of the relevant previous year exceeds rupees 10 lakh rupees. ये बात यहां पे कही उन्होंने। अब ये भी इंपॉर्टेंट कर दिया, जो कंट्रीब्यूटर है, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर है, उनका इंफॉर्मेशन यहां पे देना है। दूसरा, डिस्क्लोजर ऑफ द अथॉरिटी टू होम द रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी सर दो तरीके की इंफॉर्मेशन, दो उनकी गवर्निंग बॉडी है, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दूसरा स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब ये कह रहे हैं किस पॉलिटिकल पार्टी को कि जो आपने किस किस अथॉरिटी को कहां इंफॉर्मेशन सबमिट करा है वो आप हमें डिस्क्लोज करोगे। That is in ITR 7 for the assessment year 2026-27. An additional reporting requirement has been introduced. वो क्या है? Requiring the SSC to specify the authority to whom the report has been submitted. Number 1. दूसरा, namely the Election Commission of India or the concerned State Election Commission. इसको सबमिट करा आपने, वो इंफॉर्मेशन देने की बात कर रहे हैं सर। दिस इज द कंसाइज changes that I observed in the ITR forms. इस बार ये सारे चेंजेस हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, टाइम है सर अभी 5। So I have a request from Manoj ji that he has to leave by 7, and if you permit, we can allow Manoj ji to start, and whatever remain you can take. नहीं सर, I also have to leave. So I can hardly 5 से 10 मिनट, 10 minutes. Okay. ठीक है, 5 से 10 मिनट। Thank you. Otherwise, I'm having at 6 p.m. I'm having one appointment. So, otherwise, the most important changes that I observe in the ITR form, I have taken up that. अब वो क्या होता था? नहीं सर, वो तो है। नहीं सर, किसने कहा? वो जाएगा कहाँ? एग्जाम्प्ट इनकम तो दिखानी, इनकम है तो एग्जाम्प्ट है ना सर। सर वो सब जाता एग्जाम्प्ट इनकम में दिखाना है, वहां है सर। अब क्योंकि सर इंटरेस्ट जब भी आप इनकम शो करते हैं वो वहां पे वो आपको इनकम फ्रॉम अदर सर रिपोर्टिंग पर्पस में सर अगर कोई नहीं है, अगर इनकम है तो दिखा के, एग्जाम्प्ट है तो दिखा के अपने को आगे बढ़ जाए, क्योंकि अदर हर जगह है। दोबारा देखना सर। आप कमिंग टू दी अनदर चेंज जो मैडम पूछ रही थी, रेशनलाइजेशन ऑफ द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। ये दो चीजें, क्योंकि मैंने अभी एक पार्ट कवर करा, पहला पार्ट जो सेक्शन 139 का था, एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म मैंने कवर कर लिया। दूसरा पार्ट क्या बोलता है? वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। आपको पता है कौन कौन से एसएससी को कैसे वेरीफाई करना है। और तीसरा जो लास्ट पॉइंट था, सेटिंग फोर्थ सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो प्रिस्क्राइब्ड वाली चीज आगे रूल में, क्योंकि 5 मिनट मेरे पास शेष बचा है, इस 5 मिनट में मैं अपने आप को सम अप करता हूं इन ऑर्डर टू मेक यू। अब देखो सर, ये अमेंडमेंट आया था फॉर इंडिविजुअल हु फाइल ITR 1 एंड ITR 2, their due date of the filing return of income shall remain कौन सा सर? 31st of July. In this regard, amendment proposed in section 263(1)(c) of the corresponding act, Income Tax Act 2025, वो भी बात इन्होंने कर दी। और ये इसका ड्यू डेट का पूरा जो बजट में था वो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो 31st of August में क्या लिखा हुआ है सर, ये एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं आपसे, so that we should have the clarity. SSC having income from profit and gain of business or profession, whose accounts are not required to be audited under this act or under any other law. SSC having income from profit and gain of business or profession and whose accounts are not required to be audited. Clear हो गई बात सर? और partner of a firm whose accounts are not required to be audited, date 31st of August बताया, और any other SSC in case of 31st of July. ये डेट यहां पे डाल दिया। सिमिलर टू दैट सर, एक वो रिवाइज रिटर्न वाली बात जो थी, जो चेंजेस थे डेट्स के, जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी फॉर्म पे लेकर के। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे जो था 234I के बाद में, एक
ITR-U में भी एक चेंज है कि पहले अगर मैंने 139(4) में 139(3) में लॉस रिटर्न मैंने फाइल किया, B इज माय बिलेटेड रिटर्न और 5 इज माय रिवाइज रिटर्न। 139(3) में मैंने रिटर्न फाइल किया, उसमें लॉस मैंने दिखाया। लेटर आई रियलाइज कि भाई मेरा लॉस जो मैंने क्लेम करा दैट लॉस इज नॉट, इट्स नॉट अ करेक्ट लॉस, मुझे उससे कम करना है। तो कैन आई डू इट थ्रू द ITR-U फॉर्म? कर सकते हैं। ये कर सकते हैं वाली बात सर बजट में आया इस बार कि बोले लॉस कम कर रहे हो, हमारे को कहां नुकसान है, टैक्स हमारे को तो बेनिफिट है, तो अकॉर्डिंगली दे डिड दैट। तो ये चीज उसमें लिखी हुई है, राइट सर। इट इज फर्दर प्रपोज टू अमेंड दिस पर्टिकुलरली फॉर्म एंड दैट कुड बी डन अकॉर्डिंगली। नाउ 12(2) की बात मैंने करी, शैल नॉट बी अकम्पनीड, जो बात मैंने आपको पहले करी थी, इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी पंच्ड, राइट सर। ये वेरिफिकेशन की बात है, आप सबको पता है फॉर्म कैसे वेरीफाई होता है, दैट इज ऑल देयर। DSC, OTP, EVC, उससे जो नेचर ऑफ SSC है वो नेचर ऑफ SSC के हिसाब से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे सर। यहां तक दिस इज, अदरवाइज टाइम कम है, किसी और रोज हम प्रिजम्प्टिव और बाकी चीजें कर लेंगे। उससे सिर्फ टैक्स पेएबल एडजस्ट करोगे आप, रिफंड नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं मिलेगा। तो बाय डूइंग दिस आई होप I should now conclude with my session as far as time constraint is there. So I'm really thankful to the Shastri Nagar CP Study Circle, Manoj ji, and the entire my respected professional colleagues, my seniors, my dear brother and sisters, and all my dear respected colleagues for extending this opportunity and giving your so interactive vibes to me, so that I found up with lot of energies and I accordingly have deliberated the session. So I am really thankful from the core of my heart, and it's my heartfelt gratitude to all of you. Thank you, thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। अभी एक सर ने, मिश्रा जी ने सबसे पहले ये कहा था कि हमें इस बार पहली बार शास्त्रीय स्टडी सर्कल ने बुलाया है। सो इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस and we are lucky enough to have you here, sir. Please be seated. And due to time constraints, the presumptive part which he wanted to discuss with us is left. Yes. But sir, we'll have another session with you. Thank definitely. Not only for presumptive but other topics as well. I'm requesting Ankit Agrawal to kindly give a token of love from all of us to Pankaj ji, as he has to also leave. नेम लिखा है सर, नाम लिखा है सबके आगे। हाँ, नाम लिखा है सबका। थैंक यू अंकित, थैंक यू पंकज जी। अगर रुकते तो थोड़ा स्नैक्स लेके जाते थोड़ी देर में। 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे को 5 मिनट। लेट मी स्टार्ट विद बैठिए फ्रेंड्स। To discuss TDS and capital gains under new income tax act, अभी करंट वाली रिटर्न्स की बात कर रहे थे। Now to discuss under the new income tax act, what are the provisions for TDS, क्योंकि अब TDS हमें day and night हमें जमा भी कराना है, डिडक्ट भी करना है, and capital gains. We have with us CA Manoj Kumar Mittal ji. I request him to kindly come to the dais, please. Welcome, sir.